Hello my dear students, good morning and Jai Hind to you all. Welcoming all of you here in our SST class. So guys, as we have started the revision of the first chapter of our history, that is the French Revolution. In our previous class, we have discussed so many topics, and now today we have to start from the topic that is France become a constitutional monarch. So guys, as we have discussed in our previous class, the event of 14th July 1789, that how the people has demolished the fort, how the people has attacked on the fort and killed the guard of the prison. Okay, and now we will discuss about this. So look, we had already discussed that how King Louis XVI has accepted that now his power will be controlled by a assembly, okay, that is known as the National Assembly. Okay, Louis XVI ने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसके पावर को अब एक असेंबली कंट्रोल करेगी. ओके, सो इसी के साथ ऑन 4th August 1789 द नेशनल असेंबली हैज़ क्रिएटेड अ डिक्री. ओके, एक रूल, एक रेगुलेशन बनाया नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 को कि अब वो किंग के पावर को, किंग की नोबिलिटी को ख़त्म करके, दैट मीन्स जो नोबल सिस्टम था, द फ्यूडल सिस्टम, ओके, विल बी अबोलाइज्ड, वो ख़त्म किया जाएगा और उसके बाद क्या किया जाएगा, सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा. ओके, एंड फाइनली इन 1791 में क्या किया, नेशनल असेंबली ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लिया. ओके, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना लिया. और उनके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का मेन मोटो क्या था कि पावर को क्या किया जाए कि केवल एक सिंगल पर्सन के हाथ में ना देकर, ओके, द पावर विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पर्सन. ओके, कि पावर को 3 अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, एंड दैट इज नोन एज द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. Okay, that means the power will not be given to a single person only, it will be divided into 3 different groups. Okay, so this was the constitution which was made by the National Assembly in 1971. After that, okay, this you can say this constitution, we can say that was started with a declaration of rights. Okay, and that was the right to speech, okay, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू इक्वालिटी. ये सारे आप कह सकते हो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, जो नेशनल असेंबली ने बनाया था, वो इन डिफरेंट डिक्लेरेशंस के साथ स्टार्ट हुआ था. एंड जस्ट गिव मी अ सिंगल मोमेंट. दैट वर राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, राइट टू ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ. ओके, but what was that constitution, what was the political system during that time? So let us discuss about the political system of the National Assembly which was made in 1791. तो देखिए 1791 में जो पॉलिटिकल सिस्टम बनाया था नेशनल असेंबली ने, वो कैसे होता था. सो आइए देखते हैं इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस. दैट टाइम पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस was 28 million. Okay, that was 28 million. In that 28 million there were 2 type of peoples. First the active people, second the passive people. Look, what was the active people? In active people there were only men, okay, who has more than 25 years life. वो लोग थे जिनकी एज 25 years से ज़्यादा थी. And passive people means what? In passive people there were women, the old persons and the youth. Youth means the person has less than 25 year age, and the children also, they were known as the passive. We can say in passive, women, children, old age and youth. Youth means the people less than 25 years. Okay, so these were known as passive people जिनको वोट देने का राइट नहीं था in that time. Now these were the active people, they have right to vote. Okay, they can vote. And what they did, उनको ये पावर था कि वो 2 members को इलेक्ट करेंगे. फर्स्ट द इलेक्टोरल्स, ओके, इन दिस ग्रुप देयर विल बी 50,000 members, एंड सेकंड द जज, ओके, दैट विल बी नोन एज द जुडिशरी सिस्टम. कि ये जो 4 million एक्टिव पीपल थे, ये क्या करेंगे, ये अपने जज को भी क्या करेंगे, वोट करेंगे, और इलेक्टोरल्स को भी वोट करेंगे. जज तो सिंगल था, सिर्फ एक था, बट इलेक्टोरल्स थे वहाँ पे 50,000. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस 4 million people will choose the 50,000 electorals,
and after that these 50,000 electorals will choose the National Assembly that has 745 members. Okay, so first the people were divided into two parts, the active people and the passive people. Active people means the man who has aged more than 25 years. The passive people means the old age person, the youth, that means which have they have aged 25 less than 25 years, and the women also. Now these passive people did not have didn't right to vote, and this active people has right to vote and they elect the electorals. There were 50,000 electorals, and now these 50,000 electorals choose the National Assembly, and that has 745 people. चूज नेशनल असेंबली मीन्स व्हाट, कि वो नेशनल असेंबली के पीपल्स को इलेक्ट करते थे, चूज करते थे. देवर 745, एंड दी 745 पीपल हु वर नोन एज नेशनल असेंबली वर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. ओके, इनको लेजिस्लेचर कहा जाता था, जिनको ये पावर था कि वो लॉ यानी रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं या बनाएंगे. ओके, and after that this National Assembly has power to control the king and his ministers. They were known as executives. Okay, so that time you can say the political system was divided into three parts. The power was divided into three groups. First, the legislature, okay, that has the power to make law. Second, the executives, the king and ministers, and third, the judiciary known as judge. Okay, so that was the political system during this 1791, okay, which was made by National Assembly. And now we will discuss about France, that how France abolished monarchy and becomes a republic. Look, here you can see that France was ruled by a constitution where there was a king, but now we will discuss that how this king has finished and this constitutional monarchy has finished and become a complete republic, कि वहाँ पे अब king का system खत्म होकर completely कैसे constitution आया. Okay, so just give me a single moment guys. Okay, so now we are going to discuss that how France abolished monarchy and become a republic. Look, now in France there was constitutional with monarch, मतलब वहाँ पे राजा भी था, वहाँ पे constitution भी था, दोनों था. लेकिन फाइनली ये किंग रूल कैसे ख़त्म हुआ फ्रांस में, मतलब कैसे मोनार्क सिस्टम ओबलाइज हुआ, बिल्कुल फिनिश हुआ, और फ्रांस बिकम अ कंप्लीट रिपब्लिक कंट्री. सो लुक, although Louis XVI has accepted that now his power will be controlled by an assembly that is known as the National Assembly, but slowly indirectly Louis XVI was connected to the kings of other countries like Persia. Okay, and that countries also was very surprised that how France that how much going in France. Okay, वो बहुत सरप्राइज थे कि फ्रांस में ये सब क्या हो रहा है, और लुई 16 के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, फ्रांस पे अटैक करने का एक प्लान बनाया. दैट मीन्स ऑल द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ फ्रांस विथ लुई 16 हैज़ प्लान टू अटैक ऑन फ्रांस ऑन द नेशनल असेंबली. बट नेशनल असेंबली को इसके बारे में पहले से ही आइडिया मिल गया, एंड बिफोर देम नेशनल असेंबली हैज़ अनाउंस वॉर अगेंस्ट दैट कंट्रीज. ओके, अगेंस्ट पर्सिया, अगेंस्ट द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ फ्रांस हु वांटेड टू अटैक ऑन फ्रांस. ओके, सो उससे पहले ही अटैक कर दिया. तो बट फ्रांस हैज़ नो आर्मी, फ्रांस के पास तो कोई आर्मी थी नहीं. तो फ्रांस में डिफरेंट प्लेसेस से अलग अलग लोग खुद कलेक्ट होते थे, एंड अपने आप को एज अ सोल्जर वो क्या करते थे, फ्रांस की तरफ से वॉर के लिए जाते थे. तो जब भी ये लोग फ्रांस की तरफ से वॉर के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते थे, तो वो एक गाना, एक सॉन्ग संग करते हुए जाते थे, गाते हुए जाते थे. दैट सॉन्ग इज़ नोन एज मार्शल्स. ओके, इस सॉन्ग्स को मार्शल्स कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि मार्शल वॉज अ प्लेस इन फ्रांस. मार्शल के लोग जब जाते थे कहीं पे तो एक सॉन्ग गाते हुए जाते थे. दैट्स वाई इस सॉन्ग का नाम भी मार्शल्स पड़ गया. दैट वॉज रिटन बाई रॉजर दे एल. ओके, इन्होंने इस सॉन्ग को गाया था. एंड नाउ दिस मार्शल्स, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज नाउ दिस मार्शल्स इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ फ्रांस, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. ओके, तो अब देखिए ये फ्रांस के लोग तो वहाँ जा रहे हैं, ठीक है. तो फ्रांस के मोस्टली सभी जितने मेन थे वो बाहर जा रहे हैं, किसके लिए, वॉर के लिए. लेकिन फ्रांस में जो वुमेंस थी जो घर पे बैठी रहती थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी लोगों के साथ हेल्प करें, अपने जो हमारे लोग यहाँ से गए हैं उनकी हेल्प करें. बट वो कैसे कर सकते हैं? तो फ्रांस में उस समय अलग अलग जगह पे लोग कलेक्ट होते थे, डिस्कशन होता था, एंड दैट प्लेसेस वर नोन एज क्लब्स. उसी में था एक जैकोबिन क्लब जो काफ़ी फेमस था.
वहाँ पे क्या होते थे, वुमेंस कलेक्ट होती थी, इकट्ठा होती थी, जो भी उस समय चल रहा है हर जगह फ्रांस में, अलग अलग जगह पे क्या हो रही है, वॉर हो रही है, उन सब के बारे में डिस्कशंस होती थी। तो इसी तरह जैकोबिन्स क्लब में एक जो वुमेंस का ग्रुप था, उन्होंने भी मिल के क्या किया, उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने जो लोग हैं उनकी हेल्प करें। और यहाँ अंदर फ्रांस में उस समय क्या चल रहा था कि जो ब्रेड थी, जो बेसिक नीड थी लोगों की, ब्रेड मतलब जैसे हम लोग रोटी खाते हैं वैसे वहाँ पर उस समय ब्रेड खाते थे, उसके रेट बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसके रेट बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो इसके अगेंस्ट सभी वुमेंस ने मिल के फ्रांस में क्या किया, एक आप कह सकते हो एक आंदोलन शुरू कर दिया। ओके, कब शुरू कर दिया भाई, 10 अगस्त 1792 को, 10 अगस्त 1792 को उन्होंने ये शुरू कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें उन्होंने पहले जब वो शुरू किया तो जो किंग था उन्होंने फिर से अटैक करने का ऑर्डर दे दिया अपनी सेना को। इससे सभी लोगों क्या किए, वो सभी लोगों ने एक उस समय एक पैलेस था जिसका नाम था ट्विलरिस पैलेस। ओके, सभी लोगों ने मिलकर इस ट्विलरिस पैलेस पे अटैक कर दिया सेना से बचने के लिए। किंग को भी क्या कर लिया, पकड़ लिया, और वहाँ के जो गार्ड्स थे उनको मार दिया। ठीक है, जो वुमेंस थी उन्होंने, और जो ओल्ड एज पर्सन थे आप कह सकते हो, या जो यंग यूथ था जो नहीं जाता था बाहर, वो सभी लोगों ने मिलकर ये किया। ट्विलरिस पैलेस को क्या कर दिया, डिमोलिश कर दिया, तोड़ दिया पूरी तरीके से, वहाँ के गार्ड को भी मार दिया और किंग को पकड़ के बंदी बना लिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने ऑन 21 सितंबर 1792 नेशनल असेंबली ने क्या किया कि किंग को और उसकी पूरी फैमिली को, ठीक है, क्योंकि नेशनल असेंबली को भी पता चल गया था कि किंग क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलकर फ्रांस पे अटैक करने का प्लान बना रहा है लुई 16। तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, लुई 16 और उसकी पूरी फैमिली को प्रिजनर बना लिया और उनको जेल में डाल दिया। ठीक है, जेल में डालने के बाद धीरे धीरे इस पर डिस्कशन होता रहा। जुडिशरी सिस्टम थी, आप जानते ही उस समय जुडिशरी, तो जज तो जो थे वो सारी बातों को सुनते थे। और फाइनली जब किंग को जेल में डाल दिया गया, प्रिजनर बना दिया गया, तो ऑन यू कैन से ऑन 21 सितंबर 1792 नेशनल असेंबली बिकम्स कन्वेंशन। होगा क्या, जब किंग को जेल में डाल दिया गया तो दोबारा वहाँ पे फिर से इलेक्शंस हुए। ठीक है, फ्रांस में दोबारा इलेक्शंस हुए और फिर से जो नई नेशनल असेंबली बनी, नई नेशनल असेंबली को नाम दिया गया कन्वेंशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट न्यू नेशनल असेंबली, ओके, विच वॉज डिक्लेयर्ड इन 21 सितंबर 1792 was known as convention now. Okay, नेशनल असेंबली का नाम बदल के कन्वेंशन हो गया था। एंड नाउ यू कैन से दिस कन्वेंशन अबलाइज मोनार्की एंड बिकम अ कंप्लीट रिपब्लिक की। अब वहाँ पे किंग नहीं था, अब वहाँ पे किंग का रूल नहीं था, कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन चलने वाला था, वहाँ पे नेशनल असेंबली का पावर हो गया था। एंड नाउ दिस असेंबली इज नोन एज द कन्वेंशन। एंड फाइनली आफ्टर दैट 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को क्या कर दिया गया, सेंटेंस टू डेथ, उसको मौत की सज़ा दे दी गई, डेथ की सज़ा दे दी गई, और उसको पब्लिकली बिल्कुल एग्जीक्यूट किया गया, मतलब सभी लोगों के सामने ही फांसी दी गई थी। ओके, आप कह सकते हो बीच रोड पे सभी लोग को इकट्ठा करके उसके सामने लुई 16 को फांसी दी गई थी। और बाद में उसकी फैमिली और किंग के साथ भी, सॉरी क्वीन के साथ भी यही हुआ। सो नाउ दिस वॉज द स्टोरी देन हाउ फ्रांस अबलाइज मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस दिस टाइम, look, it was done in 21 January 1793. ओके, सो आफ्टर दिस वहाँ पे अब कम्प्लीटली कन्वेंशन का रूल होने वाला था फ्रांस में। अब देखिए कन्वेंशन जब आया तो हुआ क्या, 1793 से लेकर 1794 ये 1 ईयर का जो टाइम था, दैट वाज नोन एज द रेन ऑफ टेरर। ओके, रेन ऑफ टेरर मीन्स ये कंप्लीट टाइम बिल्कुल टेरर वाला था, बिल्कुल दहशत वाला था, सभी लोगों के मन में डर था। क्यों था, क्योंकि जब ये कन्वेंशन बना था तो कन्वेंशन में एक पर्सन था, दैट वाज नोन एज रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर को हेड लीड करने के लिए हेड बना दिया गया। तो रॉबेस्पियर क्या किया, वो एक मिडिल क्लास का पर्सन था, ओके, थर्ड स्टेट का पर्सन था। उसने क्या किया, उसने चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बहुत हाई फाई रूल्स बनाए, बहुत आप कह सकते हो हार्ड एंड फास्ट रूल्स बनाए, बहुत जल्दी जल्दी, और काफ़ी आप कह सकते हो लोगों को परेशानी होती थी इससे। उसने जो कुछ भी रूल्स बनाए उसको स्ट्रिक्टली लोगों को फॉलो करने के लिए कहा, और जो लोग भी इस रूल को फॉलो नहीं करते थे उसको गुलेटाइन करवा दिया जाता था। गुलेटाइन मीन्स व्हाट, कि गुलेटाइन का मतलब है कि लोगों के सर को उनकी बॉडी से कम्प्लीटली अलग कर दिया जाता था, मतलब उनके हेड को क्या करके कट करके अलग कर दिया जाता था। ठीक है, और ये प्रोसेस जो होता था वो एक गुलेटाइन मशीन से होता था। ये एक बड़ी सी मशीन होती थी, लाइक दिस यू कैन से, एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर, एंड यहाँ बीच में उनके हेड को रखा जाता था, ओके, लोगों के, और ऊपर से एक बड़ी सी ब्लेड गिरा दी जाती थी उनके ऊपर, जिससे उनका हेड जो था, ये बड़ा सा ब्लेड है जो कम्प्लीटली उनके हेड को उनके
बॉडी से अलग कर देता था। दिस मशीन इज़ नोन एज गुलेटाइल मशीन। ओके, गुलेटाइल मशीन, और इसीलिए इस प्रोसेस को गुलेटाइन प्रोसेस भी कहा जाता था कि गुलेटाइन करवा दिया जाता था। तो देखिए आप देख रहे हो कि रॉबेस्पियर ने अपने रूल्स को कितनी स्ट्रिक्टली तरीके से लोगों से मनवाना चाहा था। इस वजह से जो रॉबेस्पियर के अपने लोग थे, दैट मीन्स नेशनल असेंबली या दैट मीन्स जो कन्वेंशन में अपने लोग थे, वो भी रॉबेस्पियर से खुश नहीं थे। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने ही मिलके रॉबेस्पियर को अपना हेड चूज़ किया था, अपना लीडर चूज़ किया था। और रॉबेस्पियर ने अपने इन रूल्स को फॉलो करवाने के लिए जो नेशनल असेंबली में दूसरे लोग थे उनके ऊपर भी गुलेटाइन सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। मतलब अगर वो लोग भी नहीं मानते तो उनको भी गुलेटाइन करवाना शुरू कर दिया था। तो फाइनली सभी लोगों ने मिल के रॉबेस्पियर को हटाना चाहा और रॉबेस्पियर के अगेंस्ट भी जुडिशरी यानी कि कोर्ट में क्या हुआ, मुकदमा हुआ और रॉबेस्पियर को हटा दिया गया। फाइनली रॉबेस्पियर को भी गुलेटाइन करवा दिया गया। ठीक है, ये प्रोसेस नेशनल असेंबली ने किया था ड्यूरिंग 1793 से 1794 के लास्ट में। तो 1793 से 1794 का जो टाइम था उसको कहा जाता है रेन ऑफ टेरर। ये बहुत दहशत वाला टाइम था। बट रॉबेस्पियर ने जो रूल्स बनाए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स थे फ्रांस के लिए। रॉबेस्पियर ने जो रूल्स बनाए थे उसमें था जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं, जैसे ब्रेड जिसका रेट बहुत हाई हो गया था फ्रांस में। कब? 1792 में। तो रॉबेस्पियर ने एक रूल बनाया था कि किसी भी बेसिक नीड का जो रेट है वो फिक्स होगा और हर पर्सन को उसी रेट के अकॉर्डिंग उसे सोल्ड करना पड़ेगा। कोई भी पर्सन उससे एक्स्ट्रा रेट में सोल्ड नहीं कर सकता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था। ठीक है, इससे आप कह सकते हो नेगेटिव इम्पैक्ट ये था, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि किसी बेकार टाइम में भी, मतलब बहुत अगर बुरी कंडीशन भी हो जाती थी कंट्री में, तो वहाँ पे चीज़ों के रेट हाई नहीं होते थे। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि मैंने जो जगह बनाया है वहीं पे लोग सोल्ड करेंगे, अलग अलग जगह पे लोग सोल्ड नहीं कर सकते चीज़ों को। ओके, so these were the important hard and fast rules which were made by Robespierre that was very important for France. ठीक है, अब देखते हैं after that during 1973 after this 1794 the time was the dictatorship rules France। मतलब कि रॉबेस्पियर के बाद, अब देख रहे हो रॉबेस्पियर वहाँ से हटाए जा चुके हैं, तो नेशनल असेंबली ने डिसाइड किया कि अब पावर किसी सिंगल पर्सन को नहीं देना है, बिकॉज सिंगल पर्सन को पावर देते ही वो अपने अकॉर्डिंग सारा काम करने लगते हैं और जिससे क्या होता है कि रूल रेगुलेशन सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो नेशनल असेंबली जो थी, कन्वेंशन जो था, उसने क्या किया कि इन पावर्स को 5% में डिवाइड कर दिया। मतलब किंग के प्लेस पे जो एग्जीक्यूटिव था वो सिंगल पर्सन, किंग को हटा के पहले तो रॉबेस्पियर को लाया गया, रॉबेस्पियर के बाद केवल एक पर्सन नहीं 5% को रखा गया जिनको एग्जीक्यूटिव कहा गया, और जो कन्वेंशन था उसको तो लेजिस्लेचर कहते हैं। तो जब उन्होंने 5 मेंबर्स को डिसाइड कर लिया तो होता क्या था कि किसी भी रूल को फॉलो करने के लिए पहले तो जो 5% थे एग्जीक्यूटिव थे वो आपस में ही क्या करते, आप कह सकते हो, वो आपस में ही एक दूसरे के जो डिसीजन थे उनको कट कर देते थे, वो मानते ही नहीं थे। सब 5 के 5 जो थे उनके आपस में डिसीजंस मैच नहीं होते थे। कभी अगर मैच हो भी जाते थे बाय द वे, तो जो एग्जीक्यूटिव का डिसीजन था वो लेजिस्लेचर, मतलब ये जो कन्वेंशन में लोग थे, ओके 745, उनसे मैच नहीं हो पाता था। इस वजह से फ्रांस में कोई भी रूल रेगुलेशन जल्दी बन ही नहीं पाता था। तो यहाँ पे जो कंडीशन थी, आप कह सकते हो ये काफ़ी नेगेटिव कंडीशन थी, फेवरेबल नहीं थी फ्रांस के लिए, है ना, और उसके ग्रोथ के लिए। इसी बीच क्या हुआ, फ्रांस का एक सोल्जर था दैट इज़ नोन एज नेपोलियन बोनापार्ट। उसने क्या किया, उसने फ्रांस का पूरा कंट्रोल अपने पास ले लिया। वो हेड था सोल्जर्स का, इसलिए उसने अपने पावर को शो करते हुए क्या किया, फ्रांस का सारा पावर अपने हाथ में ले लिया और वो रूल करने लगा फ्रांस पे। कब? ड्यूरिंग 1804। अब जब उसने अपने हाथ में सारा पावर ले लिया तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, उसको फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है डज नॉट मैटर, उसका बस एक ही मोटो था कि फ्रांस को क्या करना है, बड़ा करना है। और इसीलिए उसने फ्रांस के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ थे उन पे अटैक करना शुरू कर दिया, 1 बाय 1 उनको जीतना शुरू कर दिया, और जो किंगडम्स थे उनको ख़त्म करने लगा वो। ठीक है, और उसको फ्रांस में ऐड करने लगा, और जिस किंगडम पे भी अटैक करता था, जो भी फ्रांस की कंट्री पे अटैक करता था नेपोलियन बोनापार्ट, उसको जीतने के बाद वहाँ पे अपने फैमिली से किसी पर्सन को लीड करने के लिए वहाँ छोड़ के नेक्स्ट कंट्री की तरफ वो चला जाता था। इस तरीके से फ्रांस में पहले मोनार्क सिस्टम ख़त्म हुआ, रिपब्लिक आया, उसके बाद रेन ऑफ टेरर ख़त्म हुआ, फाइनली वहाँ पे डायरेक्टरी क्या होती है, जो 5% का ग्रुप बनाया था कन्वेंशन ने, दैट वाज नोन एज डायरेक्टरी। एंड आफ्टर दैट द टाइम वाज नेपोलियन बोनापार्ट 1804। आफ्टर दैट फाइनली 1815, 1 सेकेंड,
finally in 1815 yes, finally in 1815, look, in 1804 Napoleon Bonaparte has crowned himself as an emperor. Okay, and after that he started what? War against all the neighboring countries of France. But finally in 1815, the War of Waterloo. Okay, it is very important war, Waterloo. Okay, Waterloo का जो आप कह सकते हो बैटल था 1815 में, उसमें फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट को हार मिली। वो वहाँ पे हार गया और वहीं वाटरलू में ही उसकी डेथ भी हो गई, वहीं पे वो मारा भी गया। और इसी तरह नेपोलियन बोनापार्ट का भी वहाँ पे चैप्टर फिनिश हो गया। इसके बाद अब फ्रांस में हमें डिस्कस करना है द रोल ऑफ द वुमन। ओके, यहाँ पर हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया दैट हाउ द पीपल ऑफ फ्रांस चेंज द रूल्स, है ना। पहले वहाँ पे मोनार्क था, मोनार्क ख़त्म हुआ, मोनार्क विथ कॉन्स्टिट्यूशन आया, मोनार्क विथ कॉन्स्टिट्यूशन फिनिश हुआ, कंप्लीट रिपब्लिक बना, कंप्लीट रिपब्लिक बनने के बाद रेन ऑफ टेरर फिनिश किया, रेन ऑफ टेरर के बाद हमने फिनिश किया डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, एंड आफ्टर दैट नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बाद फ्रांस आप कह सकते हो कंप्लीटली रिपब्लिक बन गया। उसके बाद वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रूल वर्क करने लगा, ठीक है। और इस तरीके से हम फ्रेंच रेवोल्यूशन अपना फिनिश कर चुके हैं। बट इसके बाद भी हमें ये डिस्कस करना है कि फ्रांस में इस पूरे रेवोल्यूशन में वुमेन्स का क्या रोल था। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। सो जस्ट गिव मी अ सिंगल मोमेंट गाइज। Look guys, as we have discussed that when men of France, okay, had gone out of the country for battle, है ना, आप कह सकते हो कि जब फ्रांस के लोग, जो मेन थे स्पेशली, जब वो फ्रांस से बाहर जाते थे बैटल के लिए, सो मोस्ट ऑफ द पीपल कलेक्ट देम सेल्फ इन डिफरेंट क्लब्स, है ना, अलग अलग ग्रुप्स में वो कलेक्ट होती थी, अपने आइडियाज़ को डिस्कस करती थी, है ना। दिस एंड द जैकोबिन क्लब वॉज फेमस, एंड ऑल्सो वन मोर क्लब वॉज देयर, रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन क्लब, दैट वाज आल्सो वेरी फेमस। व्हाई? बिकॉज वहाँ पे जितनी वुमेंस थी वो एजुकेटेड वुमेंस थी और वो अपने बारे में सोचती थी, वो अपने आप को लोगों के इक्वल, दैट मीन्स मेन के इक्वल मानती थी। और उनका भी एक अलग ही, आप कह सकते हो, उनका एक अलग ही व्हाट डिमांड था, उनका अलग ही डिमांड था। क्या डिमांड था? कि उनको भी, जो फ्रांस के मेन हैं, उनकी इक्वल राइट दिया जाए, मतलब उनको भी राइट टू वोट दिया जाए। ओके, उनको भी वन ऑफ द पीपल ऑफ द नेशनल असेंबली बनाया जाए, उनको भी ऐसा पावर दिया जाए कि वो भी नेशनल असेंबली के एक मेंबर बन सके, ताकि जो वुमेंस की प्रॉब्लम्स हैं वो भी वहाँ पे डिस्कस की जा सके। इसके लिए उन्होंने भी टाइम टू टाइम क्या किया, वहाँ पे फ्रांस में डिफरेंट टाइप जगह पे आंदोलन किए, आप कह सकते हो रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। एंड फाइनली इन 1946 उनको भी राइट टू वोट, मतलब कन्वेंशन ने उनको भी राइट टू वोट दिया। अब उनको भी ये पावर थी कि वो भी वोट दे सकते थे नेशनल असेंबली के लिए, या आप कह सकते हो कन्वेंशन के लिए, ठीक है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश हो चुका है। बट व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस चैप्टर, बिकॉज लुक, द आइडिया ऑफ लिबर्टी विच वी आर enjoying today and the democratic rights, the liberty and democratic rights which we are enjoying today were द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रांस रेवोल्यूशन। कि इस समय जितने भी हम, आप कह सकते हो, जो हमारे राइट्स हैं ना, जो लिबर्टी है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, जो हम इस समय एंजॉय करते हैं, इन सब का आइडिया फ्रांस रेवोल्यूशन से ही मिला है। इसीलिए हम फ्रांस रेवोल्यूशन डिस्कस भी कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज ये सारी जितने भी राइट्स हैं इनकी स्टार्टिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही होती है। ओके, आई होप कि ये कंप्लीट चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा, और अगर कहीं नहीं समझ में आता है सो प्लीज़ यू कैन कॉमेंट मी। ओके, thank you and Jai Hind guys, prepare yourself for the test, and it was a very important video lecture। first video lecture भी important है, second भी important है, पूरा video lecture देख लीजिए दोनों, and you have completed your first chapter with this। okay, thank you and Jai Hind guys।